Good evening, guys. Today I'll discuss about adjectives, which is just ahead of pronouns that we have discussed in previous video. We have gone through the entire details of pronouns. However, uh, a little thing to be discussed about pronoun has remained there, and which has been left there. This will be discussed later on whenever it is to be used, and it is the persons of pronoun. In a brief, let me tell you, there are three kinds of persons: first person, second person, and third person. I and we are examples of first persons of pronoun. You is an example of second person of pronoun. He, she, it, they are examples of third persons of pronoun. So let me continue ahead of pronouns, and it is adjective. So let me discuss about adjective. Adjective, what is adjective? A word which tells us something more. Generally, it is quality, quantity, or characteristics about a noun or pronoun is called adjective. So, what is adjective? Adjective tells us something more. समथिंग मोर क्या है? वो क्वालिटी, क्वांटिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एडजेक्टिव कहलाता है. एंड एडजेक्टिव इज ऑल्सो सेड टू बी द डिस्क्राइबिंग वर्ड, है ना. व्हाट डज इट डिस्क्राइब? इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, क्वांटिटी और सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोनाउन. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द what is called? It is called describing word. For example, let's have an example. A pretty girl. Here is pretty girl. Pretty. Okay. Then is a kind lady. Kind. A bright boy. A bright. Here the bright, pretty, kind, and these are adjectives because they are describing what? Girl, lady, and boy. It means they are giving something more about nouns or pronouns. That's why they are called adjectives and also describing words. Generally, adjectives are used before noun or pronoun. However, adjectives can also be used after noun or pronoun. Let's see it from example. He is a good boy. यहाँ पर क्या है? हमने गुड एडजेक्टिव को बॉय से पहले यूज किया है, बट हम इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं. द बॉय इज गुड, तो गुड का इसके बाद में आ गया. देन ऑल्सो इट इज रिप्रेजेंट द सेम मीनिंग. सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, तो दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो ये बाद में भी यूज हो गया. सो एडजेक्टिव जनरली जो है नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है, लेकिन हम उसके बाद में भी यूज करके हम उससे सेंटेंस बना सकते हैं और मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं. अब आता है कि हमारे एडजेक्टिव्स की पहचान हम कैसे करें, कि कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं. उसके लिए कुछ स्पेशल आइडेंटिफाइंग सिलेबल्स या कहते हैं कि वर्ड्स दिए होते हैं. वर्ड्स हैविंग फ्यू सफिक्सेज. ठीक है, सफिक्स क्या है? फुल, ISH, लेस, सम, AL, AN, IRY, ABLE, IBLE, IC, ID, ILE, INE, IVE, OUS एक्सेट्रा, है ना. तो मतलब जिन वर्ड्स के साथ में ये सफिक्सेज होते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे होपफुल, चाइल्डिश, यूजलेस, हैंडसम, नेशनल, इंडियन, इमेजिनरी, रिलायबल, परमिशिबल,
idiotic, humid, mobile, divine, interesting, and marvelous, etc. What is this? All these are adjectives which have some particular kind of syllables or words used as suffixes in the end of particular words, and those words may be noun, verb, or adjectives themselves. So let's come to next topic of formation of adjectives with the use of these suffixes. How to form adjectives? Formation of adjectives. Adjectives can be formed by adding suffixes after noun, verb, or adjectives itself. Some suffixes and adjectives which are formed by the suffixes are given below. Now, so let's understand them one by one. So let's take full, F-U-L. F-U-L का मतलब होता है कि something full of something, कि कोई चीज़ किसी चीज़ से भरी हुई. जैसे ब्यूटी, ब्यूटी का होता है सुंदरता, तो ब्यूटी इज नाउन एंड F-U-L इसमें ऐड कर दिया तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव बन गया सुंदर. थैंक है ना, और थैंकफुल तो धन्यवादपूर्ण. यूज, यूजफुल, तो ये क्या है? F-U-L लग के जो वर्ड्स बने हैं दे आर एडजेक्टिव्स. लाइकवाइज ISH, सेकंड सफिक्स इज ISH. ISH किसी में जोड़ता है, इसका मतलब होता है समथिंग लाइक समथिंग, सिमिलर टू समथिंग. जैसे बुक प्लस ISH, तो बुक इज चाइल्ड प्लस ISH चाइल्ड इज, मीन्स बुक जैसा किताबी है ना, बच्चे जैसा. उसी तरीके से गर्लिश है ना, लड़की जैसा. फुलिश, जैसे फूल क्या होता है? फुल, मूर्ख है ना. फुलिश मूर्खतापूर्ण है ना, ही इज ए फुलिश. तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ adjective. Adjective that has been formed with the help of ISH suffix. Then comes use of less. ना थर्ड, use of less suffix. less, less means without. अगर किसी के साथ less यूज होता है तो ये बताता है कि कोई चीज़ किसी के बिना है ना. तो यूज प्लस लेस, इसका मतलब यूज लेस है ना. कितना हुआ? यूज लेस. होम प्लस लेस मीन्स होम लेस, मतलब घर विहीन. होप लेस, आशा विहीन, जिसकी आशा नहीं है, विदाउट होप्स है ना. मीनिंग लेस, तो क्या हुआ? ये किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है. उसी तरीके से आता है सम है ना. सम, सम इंडिकेट्स हैविंग, इन सेंस ऑफ हैविंग. जैसे हैंड सम, हैंड सम का मतलब हैंड सम मीन्स होता है बहुत आकर्षक. जैसे हैंडसम बॉय, हैंडसम सुंदरता के लिए, पुरुष के लिए यूज होता है. जैसे क्वारलसम झगड़ालू. उसी तरीके से बर्डनसम, बर्डनसम क्या होता है? बोझिल, भारी. टायरसम, जैसे कोई चीज़ आपको थका देने वाली, उसको कहते हैं हम टायरसम. नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट सफिक्स. नेक्स्ट सफिक्स इज AL. AL मीन्स रिलेटेड टू, रिलेटेड टू. जैसे हम AL किसी वर्ड के साथ जोड़ दें तो क्या एक नया एडजेक्टिव बन जाता है. जैसे नेशन, राष्ट्र, प्लस AL जोड़ दें तो नेशनल, मतलब क्या हुआ? राष्ट्र से संबंधित है ना, तो रिलेटेड हो गया. ना, ये क्या हुआ? राष्ट्र से संबंधित. उसी तरीके से एडिशन प्लस AL एडिशनल है ना. कल्चर, कल्चरल, ओरिजिनल. देन कम्स नेक्स्ट सफिक्स इज AN. AN इज ऑल्सो रिलेटेड टू और ओरिजिनेटेड फ्रॉम. जैसे इंडिया प्लस AN इंडियन, भारत से भारतीय बना. एशिया प्लस AN एशिया से एशियन बना. इटली से इटालियन बना ना. तो ये क्या है? सब एडजेक्टिव्स. कैसे एडजेक्टिव्स हैं वो later on we will tell about what kind of adjectives these are. These are proper adjectives and they have been formed from what? Their original word, original
nouns, and they are formed with the use of an suffix. Next one is ARY suffix. Next suffix is ARY. ARY, है ना. ARY also having और possessive, जैसे custom और ARY customary, है ना. नेक्स्ट वन इज इमेजिन, इमेजिनरी काल्पनिक जिसे कहते हैं. सेकेंडरी द्वितीय जो होता है ना. प्रिकॉशनरी सावधानी पूर्वक हो गया. देन नेक्स्ट सफिक्स इज एबल. एबल मीन्स वर्क, जिससे रिलायबल, रिलाई प्लस एबल रिलायबल विश्वसनीय, है ना. देन कम्स रीजन प्लस एबल रीजनेबल तार्किक. एक्सेप्ट स्वीकार योग्य, एक्सेप्ट प्लस एबल एक्सेप्टेबल. देन एडवाइस प्लस एबल मीन्स advisable, huh? So this is advisable. So able का यूज करके क्या बना, दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स बने. तो able अगर किसी वर्ड के बाद में आ रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव. अप टू हियर आई होप सो कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, है ना. सो नेक्स्ट सिलेबल और सफिक्स का इस्तेमाल आता है. तो नेक्स्ट सफिक्स इज IBLE. IBLE मीन्स होता है किसी को वर्थ योग्य बना देना. जैसे डिवाइड प्लस IBLE मीन्स होता है डिविजिबल, विभाजन योग्य. परमिट प्लस IBLE मीन्स होता है परमिसिबल, जिसको आज्ञा दी जा सके. एडमिट, है ना, एडमिसिबल स्वीकार योग्य. विजिट प्लस IBL विजिबल देखने योग्य. तो ये सब क्या है हमारे, ये सब एडजेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट इज IC, किसी के लाइक, किसी जैसा जो होता है. जैसे इडियट प्लस IC इडियटिव मूर्खतापूर्ण, है ना, मूर्खों जैसा. हीरोइक, हीरो प्लस IC हीरोइक हीरो जैसा, है ना, नायक जैसा. पोइट IC पोइटिक, पोइटिक कवि जैसा. पेटिटिव देशभक्त जैसा, है ना, इसको कहते हैं हम देशभक्त जैसा. तो वो हो गया हमारा सफिक्स IC का इस्तेमाल. नाउ नेक्स्ट सफिक्स कम्स ID. ID इज ऑल्सो हैविंग. हैविंग जैसे ह्यूमिडस प्लस ID मीन्स ह्यूमिड. ह्यूमिड क्या होता है, नम, है ना, नम जिसमें आर्द्रता होती है. टिमिडस टिमिड, भयभीत, डरा हुआ, है ना. एंड फ्लूइडस प्लस ID फ्लूइड, लिक्विड, तरल. नेक्स्ट ILE शोज द नेचर ऑफ समथिंग. जैसे मोब प्लस ILE मोबाइल, गतिशील, है ना. इरेक्टाइल, इरेक्टाइल मीन्स होता है कि किसी चीज़ का खड़े होने से संबंधित, है ना, कि इरेक्टाइल खड़े होने योग्य. वर्सेटाइल, वर्से प्लस ILE वर्सेटाइल. वर्सेटाइल का मतलब होता है कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी, वर्सेटाइल. तो दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव. फ्रेजल, फ्रेजलिस प्लस ILE, तो इस फ्रेजाइल. फ्रेजाइल नाजुक, नाजुक जो होता है दैट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, कि कोई चीज़ बहुत जल्दी टूट जाए. तो ILE हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ये ILE सफिक्स किसी वर्ड के पीछे आ रहा है तो उससे हमारा क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है. नेक्स्ट सफिक्स इज EN और ED मीन्स हैविंग और डन. सो ब्रेक प्लस EN ब्रोकन, है ना, ब्रोकन टूटा हुआ. एजुकेट प्लस ED एजुकेटेड पढ़ा लिखा शिक्षित. रिटन, है ना, WRITE प्लस EN रिटन. रिटन क्या है, लिखित, तो ये एडजेक्टिव है. स्पीक प्लस EN स्पोकन, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव. ING, नेक्स्ट सफिक्स इज ING. ING मीन्स दिस वाज हैविंग, किसी चीज़ का होना. जैसे इंटरेस्ट प्लस ING इंटरेस्टिंग, रुचिपूर्ण. डैश प्लस ING डैशिंग, मतलब बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, बना ठाना जैसे कहते हैं. ठीक है, जनरली मेल्स के लिए यूज होता है डैशिंग. नेक्स्ट इज रन प्लस ING रनिंग, जैसे चलता हुआ, दौड़ता हुआ. कमिंग आते हुए. देन कम्स IVE हैविंग, ये भी होता है. एक्टिव, एक्टिव एक्ट प्लस IVE मीन्स एक्टिव, मतलब क्रियाशील हमेशा. क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब जिसे हम कहेंगे कि नव निर्माणपूर्ण. अल्टरनेट प्लस IVE अल्टरनेटिव, वैकल्पिक, वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कहते हैं अल्टरनेटिव
way of doing something. Negate plus iv, negative, नकारात्मक. Next comes next suffix is ous, and ous is also what, full of something. जैसे अगर कोई चीज़ के साथ किसी वर्ड के साथ में ओएस लगा है तो एक तो हम ये जान जाएंगे कि वो एडजेक्टिव है और वो किसी चीज़ से परिपूर्ण है. जैसे फेम प्लस ओएस, फेमस मतलब प्रसिद्धि से भरपूर, प्रसिद्ध. फेव, फेविल प्लस ओएस, फेबुलस मतलब बहुत शानदार, है ना. डेंजर प्लस ओएस, खतरे से भरा हुआ, खतरनाक, डेंजरस. एंड करेज से भरा हुआ, करेजियस. सो दीज आर एडजेक्टिव्स विच आर फाउंड with the use of ous suffix after some words. Maybe they are noun or any other parts of speech such as pronoun or adjective. But here they have been found after their use. They have been formed after they have been used. They have been used with the nouns. So here we have found adjective. Now next comes kinds of adjectives. For making fundamental understanding of adjectives, we must also go through the kinds of adjectives. Also must keep in our mind what kinds of adjectives are there. There are 8 kinds of adjectives that we must keep in our mind, and they are as. So let's take first is the adjective of quality, and example of them is red, blue, green, sweet, etc. Second one is adjective of क्वांटिटी, मतलब संख्यात्मक विशेषण, जैसे बताता सम, फ्यू, मच, मैनी, एक्सेट्रा. थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जहाँ से कोई संख्या पता चलती है. ये भी जैसे वहाँ से भी संख्या मैनी हो सकती है, फ्यू हो सकती हैं, 2, 3, 4, एक्सेट्रा, ये भी हो सकती हैं. और उसके बाद आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच. These are examples of demonstrative adjectives. Next one, interrogative adjectives. Interrogative adjective is what, which, how, much, etc. They are examples of interrogative adjectives. Likewise there is possessive adjective. जैसे possessive pronoun हमने बताया था एक बार, तो possessive adjective वहाँ डिस्कस किया था. यहाँ आपको अब इसका possessive adjective का यूज़ करना है. तो possessive adjective क्या है? my, your, his, her, etc. These are examples of possessive adjective. And one more adjective after that is distributive adjective. जैसे each, every, जब किसी सेंटेंस में यूज किए जाएंगे किसी नाउन के पहले, तो they will be distributive adjectives. And last one is proper adjective. Proper adjective जैसे adjective which are formed by adding some suffixes after their originating nouns. जैसे इंडिया से इंडियन बना, इटली से इटालियन बना, एशिया से एशियन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, ब्राज़ील से ब्राज़ीलियन बना. ऐसे इस टाइप के जो एडजेक्टिव्स होते हैं, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव्स. नाउ लेट अस डिस्कस them and their use in proper detail. So first one is adjectives, adjective of quality. जैसे इसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण. एन एडजेक्टिव विच शोज क्वालिटी और काइंड और कंडीशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल जैसे सीता वाज इन येलो ड्रेस, तो येलो क्या है यहाँ पर, दिस इज शोइंग व्हाट, कलर. कलर मीन्स होता है एक क्वालिटी, है ना. मैंगो इज स्वीट, स्वीट क्या है, क्वालिटी, है ना. चंदन इज स्मार्ट, स्मार्ट क्या है, क्वालिटी. Ramu is tall, tall is also a quality. So these are examples of adjectives of quality. Now next comes adjective of quantity. Second one is adjective of quantity.
क्वांटिटी किसी चीज़ की संख्या को जो एडजेक्टिव्स प्रदर्शित करते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। ओके, एन एडजेक्टिव इंडिकेटिंग क्वांटिटी, डिग्री, नंबर, ऑर्डर एक्सेट्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मैनी स्टैंडर्ड बुक्स ऑन इंग्लिश। मैनी, ठीक, क्वांटिटी को शो कर रहा है, बहुत सारी, है ना। अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। लिटिल मीन्स थोड़ी, तो दिस इज ऑल्सो शोइंग क्वांटिटी। नाउ वन थिंग दैट वी मस्ट कीप इन आवर माइंड इज दैट adjective of quality and adjectives of quantity both are used before uncountable nouns, है ना। तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि वो जो नाउन्स होती हैं वो काउंटेबल नहीं होती हैं। थर्ड काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब जो एडजेक्टिव किसी नाउन की संख्या बताता है, जैसे क्या है, कोई बहुत सारी हैं, 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसी हैं, है ना। तो दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस, आई हैव 3 ब्रदर्स, जैसे मेरे 3 भाई, तो 3 क्या शो कर रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट इज आई हैव मैनी बुक्स। मैनी क्या शो कर रहा है यहाँ पर, दिस इज शोइंग adjective of numbers. Some other adjective of numbers are all, any, both, enough, each, every, few, more, etc. है ना। There are also examples of adjective of numbers. Next comes the demonstrative adjective. Demonstrative adjective. So demonstrative adjective is an adjective which points out a noun or pronoun. जो किसी नाउन प्रोनाउन को पॉइंट आउट करता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस इज मार्वलस आइडिया, दिस, तो मार्वलस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, है ना। सो दैट टेबल, टेबल को बिलोंग बता रहा है कि दैट टेबल बिलोंग्स टू हिम। उसी तरीके से आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तो यहाँ पर सच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्यूटीफुल गर्ल को। सो दिस इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो अप टू हियर वी हैव डिस्कस्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड with a noun to ask a question is an interrogative adjective। जैसे what time is it, है ना, what date is today, which pen is yours, whose book is this। तो यहाँ पर जो ये वर्ड्स हैं, है ना, these are interrogative adjectives। नेक्स्ट कम्स possessive adjective। possessive adjective क्या है, possessive adjective an adjective which shows possession of a noun or pronoun is an example of possessive adjective। जैसे where is your book, तो possession कहाँ से आ रहा है, your, है ना। what is its value or cost, इसकी, तो किसी चीज़ के possession को शो कर रहा है, noun के pronoun his और her। तो these जैसे your, its, his और her are examples of possessive adjectives। okay, next one is distributive adjective। Distributive adjective as its definition says an adjective which refers to each one of a number of noun is distributive adjective। जैसे each question carries 5 marks, each, तो यहाँ क्या हुआ, each, है ना। each is an example of distributive adjective। Everyone must have good command over language to be a good speaker। मतलब अच्छा स्पीकर किसी भाषा का अगर किसी को बनना है तो उसको उस भाषा में अच्छी कमांड होनी चाहिए। जैसे आपको इंग्लिश का गुड स्पीकर बनना है, यू मस्ट हैव गुड कमांड ओवर लैंग्वेज एंड इट्स ग्रामेटिकल रूल्स, देन ओनली यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट ऑल्सो हैव द साउंड वोकैबुलरी। तो यहाँ पे क्या होगा, लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए। एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू इज ऑल्सो द वे ऑफ हैविंग कमांड ओवर लैंग्वेज। ओके,
नेक्स्ट इज दिस आइदर, है ना, आइदर ऑफ द बुक्स विल बी गुड. आइदर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ what kind of adjective? Distributive adjective. Okay, then next comes last one is the proper adjective, and this is what an adjective which originates from proper noun. Originates from proper noun is an example of proper adjective. जैसे इंडियन, इटालियन, एशियन, अमेरिकन, पंजाबी, कोई भी शहर का ले सकते हैं, है ना, जैसे मोबाइल्स, डलहाइट्स, है ना, इसी तरीके से. तो ये these are examples of proper adjectives. So up to here we have discussed the fundamental details about adjectives. This was prerequisite to understand the further complex things about adjectives, and in the coming videos I'll continue to tell you few more and complex things about adjectives, use of different adjectives, which will be very important for you to uh, make new inroads in understanding English language, and to have good command over language that will help you in manifesting yourself in an effective way, which will also be helpful in making your good writing skills. So keep on watching videos. Never forget to like and subscribe my channel, as it will encourage me to post more and more qualitative videos so that you guys may benefit. Okay, thank you. Okay, thank you all guys.